So guys, welcome to a new video. Today we are going to study about a new concept, that is asymptotes. So let us begin from its definition. Write down the definition of asymptotes. Definition: asymptote asymptote is a straight line which touches the curve y equals to fx at infinity. यहाँ पर देखो ना, asymptotes क्या होता है ना, asymptotes is nothing but a straight line and which touches the curve y equals to fx at infinity. वो देखो वो क्या होता है ना, asymptotes सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि हम किसी भी सपोज कर्व y इक्वल्स टू fx का निकालना चाहते हैं. asymptotes क्या होता है ना, वो इन्फिनिटी को जहां पर टच करेगा वो कर्व को, वो होता है asymptotes. So suppose let us take one example, y equals to e to the power x, and we know that the graph of y equals to e to the power x is like this. Y equals to e to the power x. This is the graph of y equals to e to the power x. Here x will be 0, so put the value of x 0 here, then we get the value of y equals to 1, so this point will be 0 1, and this is our x axis, and the curve y equals to e to the power x touches x axis at infinity. Therefore the asymptote of y equals to e to the power x is what? X axis. Let us take one more example, y equals to log x base e, and we know that the graph of y equals to log x is like this. Here y equals to the graph of, this is the graph of y equals to log x base e. So this point is 1, x equals to 1, then we know that log 1 value will be 0, then y will be 0, so this point will be 1 0. Now see here, this is the equation of what? Y axis. This is our y axis, this is our x axis. So see the graph of y equals to log x. Y equals to log x touches y axis at infinity. Therefore according to our definition, the asymptote of y equals to log x base e is y axis. Understand this concept? So now I am repeating the definition. Asymptote is a straight line which touches the curve y equals to fx at infinity. Simply एक होता क्या है ना, देखो एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे ही टच करेगा. तो सपोज मैं ले रहा हूँ y इक्वल्स टू ई टू द पावर x एक कर्व है. देखो ये y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ है, तो ये जो कर्व है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ये कहाँ पर x एक्सिस को टच कर रहा है? ये इन्फिनिटी पे, ये तो ऐसे स्प्रेड हुआ है तो ये इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, तो इसीलिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका क्या हो जाएगा ना, असिम्प्टोट्स हो जाएगा. वही चीज यहाँ पर लिखा हूँ. ऐसे सेम केस इसके लिए. सो राइट नेक्स्ट हेडिंग, गिव नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज वर्किंग रूल टू फाइंड आउट asymptotes. Working rule to find out asymptotes. First we will discuss about method 1, then method 2. Method 1. तो
first point is that let f of xy equals to 0 be the given curve of nth डिग्री। देखो सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारा जो कर्व है वो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में है, जिसका डिग्री क्या है ना n। नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, पुट y इक्वल्स टू mx प्लस c इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एंड सिंप्लीफाई। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, सपोज हम मान के चल रहे हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c इसका एक एसिम्पटोट्स है, तो ये जो y इक्वल्स टू mx प्लस c कहाँ पर पुट करेंगे ना, ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पर पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, लेकिन सपोज क्यूब है स्क्वायर है उसको हटाएंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे ना, थर्ड स्टेप, नेम द कोफिशिएंट of x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 and so on as phi nm, phi n minus 1m and phi n minus 2m and so on respectively। मतलब हम क्या करेंगे, देखो सपोज ये जो ये एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे ना, x का पावर जो n है उसका कोफिशिएंट को क्या लेंगे ना, फाई nm लेंगे। ऐसे x का पावर जो n माइनस 1 है उसको उसका कोफिशिएंट को क्या लेंगे, फाई n माइनस 1 m लेंगे, और x का पावर जो n माइनस 2 है उसका कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे, फाई n माइनस 2 m। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज देयर, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है ना, फोर्थ स्टेप क्या है ना, पुट फाई n m इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर m। हम क्या करेंगे, देखो पहले किसका कोफिशिएंट ना, x टू द पावर n का कोफिशिएंट को क्या करेंगे ना, 0 के साथ इक्वेट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके एंड सॉल्व इट फॉर m के लिए उसको सॉल्व करेंगे, से m इक्वल्स टू m1 m2 m3 एंड सो ऑन अप टू mn be its रूट्स। सपोज हम जब सॉल्व कर रहे हैं फाई nm इक्वल्स टू 0 को, और वहां पर जो हम हमारा m का वैल्यू आ रहा है वो सपोज m1 m2 mn अप टू mn है, ये किसका रूट है ना, ये जो इक्वेशन है उसका m का वैल्यू ये सारा है। नेक्स्ट क्या है ना, फिफ्थ पॉइंट, पुट फाई n माइनस 1 m इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर c, से c इक्वल्स टू g of m एंड फाइंड c फॉर each m से c1 इक्वल्स टू g m1, c2 equals to g m2 and like this cn equals to g mn। that means this point, put phi n minus m equals to 0, phi n minus 1 m equals to 0 is what, the coefficient of x to the power n minus 1, and after equating this term with 0 we have to solve the value of c, say this will be c equals to g of m,
इट मीन्स व्हाट ना, वी हैव टू एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ एम। हम क्या करेंगे ना, सी को एम के टर्म में लिखेंगे एंड फाइंड सी फॉर ईच एम। देखो यहाँ पर जितना भी एम निकला है, सपोज एम इक्वल्स टू -1 है, -2 है, -3, ये पूरा एम, जब एम का वैल्यू m1 होगा तो c1 कितना होगा, एम का वैल्यू जब m2 होगा तो c2 कितना होगा, ऐसे सारा कॉरस्पॉन्डिंग। देखो m1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग c1 निकालेंगे, m2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग c2 निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। सपोज ये क्या है ना, c1 इक्वल्स टू gam1 है, तो c2 इक्वल्स टू gm2 है, और cn इक्वल्स टू gm2, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है। तो क्या होगा नेक्स्ट ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, the required asymptotes are the required asymptotes are y equals to m1x plus c1। यहाँ पर m1 लिए हैं तो यहाँ पर उसका यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, जैसे y equals to m2x plus c2। नेक्स्ट क्या होगा ना, y equals m3x plus c3, इससे जाएगा कहाँ तक ना, y equals to mnx plus cn। इतना ये देखो, यहाँ पर सपोज x का वैल्यू m का वैल्यू m1 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग c1 के साथ एक इक्वेशन होगा, ऐसे m2 के लिए c2 के साथ एक होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा ना, mn और cn तक जाएगा। तो ये सारे टोटल क्या है ना, रिक्वायर्ड असिम्पटोट्स ये है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द, और एक यहाँ पर पहले ही और एक नोट करके लिख दो, नोट करके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखो, नो asymptotes exist for imaginary values of m। देखो इसका मतलब क्या है ना, सपोज यहाँ पर m का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर सपोज m का वैल्यू ये इमेजिनरी आ रहा है, अगर m का वैल्यू इमेजिनरी आएगा तो उसी कर्व का क्या नहीं होगा ना, करस्पॉन्डिंग m का असिम्पटोट्स नहीं होगा। तो ये वही है ना, नो असिम्पटोट्स एग्जिस्ट फॉर इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ m। तो m मस्ट भी क्या होना चाहिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ असिम्पटोट्स, m मस्ट बी a रियल नंबर। So let us do an example. Suppose question is given that, write down the question. Question is given that find the asymptotes of the curve x cube plus y cube equals to 3axy. Question is what? Now find the asymptotes of the curve x cube plus y cube equals to 3axy. This is the given curve. We have to find the asymptotes of this curve. So put the now answer, write down answer. First we have to write this equation in standard form, that is in the form of f of xy equals to 0. The given curve is what? X cube plus y cube equals to 3axy. And first we have to write this curve in standard form. This implies as x cube plus y cube minus 3axy equals to 0. Let it be equation 1. Suppose ये equation 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था ना, अभी पुट y equals to mx plus c, पुट y equals to mx plus c into equation 1,
अगर हम ये इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी डालेंगे, मतलब जहां पर भी y है वहां पर हम क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन 1 क्या होगा, पुट y इक्वल्स एक्स क्यूब तो ऐसे रहेगा, प्लस अब ये जो y के बदले क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 a एक्स है। अभी यहाँ पर भी y है, y का बदले क्या लिखेंगे ना, एम एक्स प्लस सी। तो राइट डाउन एम एक्स प्लस सी equals to 0. Now we have to simplify this term. This implies yes, it will become what, x cube plus, now here we have to use a plus b whole cube formula, that is a cube, that means mx whole cube plus 3a square, 3 into a square means mx whole square, 3a square, b is what, c, plus 3a is what, mx, 3mx, 3ab square means c square. Next is what, b cube, that means c cube, and 3ax into mx is what, minus 3am x square. Next minus 3ac x equals to 0. Now write down the, now further on simplifying, if देखो अगर फिर से सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या होगा ना, एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3c m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3c m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3mc स्क्वायर एक्स प्लस c क्यूब माइनस 3am एक्स स्क्वायर माइनस 3ac x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखो जितना सारा भी सेम ऑफिस सेम का पावर है, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को एक साथ लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर, ये एक्स का पावर स्क्वायर 2 है, ये 2 को एक साथ लिखेंगे। अब इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, देखो तो अरेंज करके लिखेंगे तो भी जाके इक्वेट कर पाएंगे ना कोफिशिएंट को। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा ना, 1 प्लस एम क्यूब होल इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, हाँ कि नहीं, ये दोनों में। अभी देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कहाँ पर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो रहा है ना, प्लस 3c m स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस 3am होल इंटू एक्स स्क्वायर, 3cm स्क्वायर माइनस 3am एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स का टर्म को लिखेंगे, प्लस एक्स का टर्म क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है एक्स का टर्म, और ये अगर यहाँ पर एक्स का कॉमन लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस 3mc स्क्वायर माइनस 3ac होल इंटू m, प्लस कांस्टेंट है, प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है 1 प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब, सही है। नेक्स्ट क्या है, 3cm स्क्वायर, सही है, माइनस 3am होल स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट 3cm स्क्वायर, सही है, माइनस 3ac होल इंटू m, सही है। तो देखो अभी क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पर मिलने पर हम क्या कर रहे थे ना, जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको एक एक्सप्रेशन दे के लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 5 में, इसे स्क्वायर को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ना 5 n m क्या हो रहा है ना, इक्वल्स टू 5, यहाँ पर n क्या है 3 है, तो क्या होगा ना 3m इक्वल्स टू 1 प्लस m क्यूब, और 5n माइनस 1m क्या है इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 3cm स्क्वायर माइनस 3am। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था ना, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो पुट
फाइव एन एम इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा तो क्या होगा, वन प्लस एम क्यू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज अब यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट क्या होगा, देखो अभी m का वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से m का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइजेस वन प्लस एम इक्वल्स टू जीरो एक, और एक क्या होगा ना, इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो होगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या आ रहा है ना, m इक्वल्स टू माइनस वन। यहाँ से क्या आ रहा है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस और माइनस वन, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस वन का स्क्वायर तो वन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है वन इंटू सी क्या है वन बाई टू है मीन्स टू। तो ये अगर होगा तो ये क्या होगा, वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू। देखो हुई चीज ये क्या हो रहा है, हुई चीज इमेजिनरी, हुई चीज इमेजिनरी। और हम पढ़े हैं क्या ना, m का वैल्यू जब इमेजिनरी होगा तो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम सिर्फ कंसीडर करेंगे कि किसको ना, m इक्वल्स टू माइनस वन। अभी देखो m का एक वैल्यू आ गया तो हमको अभी किसका वैल्यू चाहिए ना, c का वैल्यू चाहिए। तो c का वैल्यू कैसे आएगा ना, पुट फाइव एन माइनस वन एम इक्वल्स टू जीरो। फाइव एन माइनस वन एम क्या है ये, तो दिस इम्प्लाइज थ्री सी एम स्क्वायर माइनस थ्री ए एम इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सपोज इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, थ्री सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री ए एम। यहाँ पर देखो थ्री थ्री कैंसिल हो रहा है, ऐसे एक एम तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, तो अगर c को इन टर्म्स ऑफ a लिखेंगे तो c इक्वल्स टू a बाई एम हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू क्या हो गया, a इक्वल्स c इक्वल्स टू a बाई एम हो गया। देखो सपोज यहाँ पर हम a को कॉमन, a यहाँ पर कॉमन क्या जा रहा है, m कॉमन जा रहा है, तो अगर m कॉमन जाएगा तो क्या होगा, m का वैल्यू एक जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं था तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया। तो अगर c इक्वल्स टू क्या a बाई एम आ गया तो क्या, फॉर यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, फॉर m इक्वल्स टू माइनस वन, c इक्वल्स टू क्या आएगा a बाई माइनस वन, तो इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस a। तो जब m इक्वल्स टू माइनस a होगा, c इक्वल्स टू माइनस a होगा, तो अभी हमको तो मिल गया, m मिल गया, c मिल गया, तो अभी हेंस द रिक्वायर्ड asymptote इज क्या होगा, रिक्वायर्ड asymptotes हमारा क्या था, रिक्वायर्ड asymptotes इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू m क्या है माइनस वन, तो माइनस x हो जाएगा, इसे c क्या है तो माइनस a हो जाएगा। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या होगा ना, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एसिम्पटोट। देखो ये सिर्फ एक मेथड था एसिम्पटोट्स निकालने के लिए, और भी एक मेथड है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे और वहां पर भी डिस्कस करेंगे, पैरेलल एसिम्पटोट्स और एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।